I am one of those people who would take a challenge head on and say, "Kaise nahi hoga?" Hoga. I firmly believe, careers are not a straight line anywhere. There will always be ups and downs. It's just how you are reacting to what life throws to you. I have fallen down. I have done things wrong. I have learned from those mistakes. Commit another mistake. It's all right, but not the same one. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू आर ग्रीटिंग अ सिक्योरिटी गार्ड टू हाउ यू कम अक्रॉस एट अ रिसेप्शन डेस्क टू हाउ यू आर सिटिंग व्हाइल वेटिंग फॉर एन इंटरव्यू, पीपल आर वॉचिंग यू. देखिए, आई थिंक जो चीज़ टाइम ने सिखाया है वो ये है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए. हम रिज्यूमे तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, पर क्यों वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता? और अगर शॉर्टलिस्ट हो भी जाए तो क्यों इंटरव्यू राउंड आते आते जॉब हमारे हाथों से फिसल जाती है? प्रॉब्लम आपका रिज्यूमे नहीं, लर्निंग कर्व है. वेलकम टू लीडर्स लाउंज, ए ग्रेट प्लेस टू लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स who drive India's business scenario. We have with us Simeen Askari, who is presently holding the position of Senior Vice President, DS Group, but started her career as a salesperson and remained into media, production, marketing, and whatnot. It's an honor to have you with us today. Welcome to this round of Leaders Lounge, an effort of GLA University, Greater Noida, and Center for Distance and Online Education. मुझे बहुत भरोसा है इस बात का सिमीन कि आप जैसी शख्सियत के यहाँ होने से आज के इस एपिसोड से हमारे व्यूअर्स को एक नई दिशा मिलेगी, सोचने का एक नया नज़रिया मिलेगा. गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं इस बात से कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं. आपने एक छोटे शहर से अपनी जर्नी शुरू करी और आज सफलता के इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, तो ज़िंदगी ने डेफिनेटली बहुत सारे रंग दिए होंगे बीच में. तो हम और हमारे व्यूअर्स सिमीन के उन स्ट्रगल्स को जानना चाहेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. शुक्रिया आपका बहुत बहुत टू हैव मी हियर. एंड यस, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में, बट इट्स हाउ यू टेक दो स्ट्रगल्स एंड यू थिंक दैट देयर आर चैलेंजेस, दैट्स व्हाट मेक्स यू हु यू आर टुडे. सो if someone would have told me all those 30 years ago that you're going to be an HR and business excellence head at a group this diversified the way we are today at DS Group, I would have probably smiled and said, yeah, let's see. Because I never started in HR. I started off as a salesperson. मेरी शुरुआत जो थी वो कैंपस रिक्रूटमेंट से हुई थी, and I started off selling majorly hardware, computer hardware. And on the way, I think I started acquiring the skills that are required for my job today. So, being in the market, understanding customer requirements, and listening, really listening. That's what probably defines who I am today. Struggles, ज़ाहिर है सबकी लाइफ में होती ही हैं, and mine is no different. But I think it's how you take these struggles, and if you think these are struggles. For me, I never thought of it as a struggle. Frankly, it's not like a dramatic statement that I'm making. It's just that I never felt that these were struggles. I always felt that this is a challenge. And people who know me, deeply and personally know that I am one of those people who would take a challenge head on and say, "Kaise nahi hoga? Hoga. I will make sure that I am going to, do this." So, अगर कोई problem दिखती है मुझे, I think my first reaction is not कि अरे problem है. My first reaction is कि इसको कैसे sort out करें, इसका solution कैसे निकालें. So, over the time, while I was a salesperson, then came in business development. I ventured into our own entrepreneurial venture, started working with my husband. I actually evolved into an HR professional. That, that period actually taught me how to look at a business holistically. And any person who's aspiring to be an HR professional should understand the language of business first of all. So, understanding what ROI already means, how is your impact going to be, any decision that you make in HR comes from a deep understanding of a business.
And I think for anyone who wants to get into these professions, it's important to um, understand business, to embrace, for example, the data analytics part of it, and to hone its skills through the way. So yeah, challenges rahi hain, but I think challenges overcome bhi hui hain throughout my journey. I am now a mother-in-law as well. So, raising two children and now, having them married and settled. Through this period, I've gone through several ups and downs. The career has moved zigzag, upar niche, har taraf. But it's always been an interesting journey. So I firmly believe, careers are not a straight line anywhere. There will always be ups and downs. It's just how you are reacting to what life throws at you. That's what defines you as an individual. And I think I've been pretty blessed to be able to navigate through all of that successfully, I would say. बहुत खूबसूरती से आपने अपनी इस जर्नी को बयां किया। थोड़ा सा किताब माजी की ओर पलट के देखना चाहेंगे, योर पास्ट। जी। आप एक स्टूडेंट रहीं, आपने MBA किया, उससे पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और आज आप जिस लेवल तक पहुंची हैं, फ्रॉम स्टूडेंट टिल दिस कॉर्पोरेट पर्सन, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लाइफ में आते हैं। तो आपने जैसे बोला कि टाइम ने सिखाया कि बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है। जी। थोड़ा सा हमको उन चीज़ों के बारे में बताएंगी? देखिए, आई थिंक जो चीज़ टाइम ने सिखाया है वो ये है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए. So you should never stop learning. I think that's the number one advice that I would give to anyone. Continuous learning, unlearning and relearning is something that should happen in your life. So for anyone who's starting off in their career journey, I think my advice would be to continuously learn. There's so much around the world. So for any youngster in their career, right, stepping in, continuous learning is very important. Second thing that I feel is most important is being courageous. Don't be afraid of failures. Failures होते हैं लाइफ में, मेरी भी लाइफ में बहुत failures हुए हैं. I have fallen down, I have done things wrong, I have learned from those mistakes. The only thing I have learned from that is never ever make the same mistake twice. So once you made that mistake, learn from it, go on, get up, commit another mistake, it's all right, but not the same one. So that's something that, that's only when you have the courage to venture into something which is unknown, which is a new territory, which is out of your comfort zone. That's when you're able to do that. So don't ever feel scared of stepping into the unknown, right? And the third thing I feel is consistency. Consistency is also very important. Your talent may open the doors for you, but it is your constant effort that's going to keep them open for you. It's your own values. It's the way you interact with people. It's the way you make those efforts continuously, day after day. That's what keeps them open for you. So I think for youngsters, this advice would hopefully help them in future. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HR होने के नाते आप काफ़ी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लेती होंगी रिक्रूटमेंट में। ऐसा कई दफ़े आपके सामने भी आता होगा कि एक तरफ बड़े शहरों के वेल ट्रेन बच्चे और दूसरी ओर सेमी रूरल सेमी अर्बन बैकग्राउंड के बच्चे जो टैलेंट रखते हैं। तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या स्किल्स अपने कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ में देखती हैं और कैसे उनको आगे ट्रेन करती हैं बेहतर लाइफ के लिए? देखिए, कभी भी जब भी कोई रिक्रूटमेंट करता है, और मैं खाली अपनी बात नहीं करूँगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जाहिर सी बात है कि टेक्निकल नॉलेज होना तो बहुत ही ज़रूरी है, मगर वो एक फ़र्स्ट स्टेप है जिसके कारण आपका रेज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपका पेपर तो आगे पहुंच जाएगा, मगर नेक्स्ट व्हाट, हाउ डू यू मेक एन इम्पैक्ट, राइट? इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं, आप किस तरह से कहाँ से पढ़े हैं. यस, अगर आपका पेपर इस तरह का है, इस लायक है कि वो आपको फर्स्ट स्टेप क्रॉस करा देता है, उसके बाद ये आप पे है कि हाउ डू यू कम अक्रॉस एज एन इंडिविजुअल. what lacks sometimes is the soft skills, the communication. How do you come across as an individual? आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. So जब हम रिक्रूट करते हैं, ज़ाहिर है, एज आई सेड, टेक्निकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट उसके बियॉन्ड क्या,
सो उसके बियॉन्ड लर्निंग एबिलिटी क्या है आपकी, किस तरह से आप अपनी कॉन्फिडेंटली आप किसी चीज़ को आंसर कर रहे हैं, किस तरह से आपके अंदर वो कॉम्पिटेंस दिख रही है कि यू आर गोइंग टू बी एबल टू वर्क इन अ टीम, कोलैबोरेशन स्किल्स हैं आप में या नहीं है। मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे कल्चर के अंदर कोलैबोरेशन इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, आई वुड से, एबिलिटी एंड अ कॉम्पिटेंस दैट वी लुक इन पीपल. We don't want people who are working in isolation. We want people who will take everyone along. So उनकी अपनी कॉम्पिटेंस तो है, मगर वो बाकी लोगों को कैसे वैल्यू करते हैं, आपकी अपनी वैल्यूज़, जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी से तो आपकी वैल्यूज़ उसमें झलकने लगती हैं। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आप किस तरह से किसी को ट्रीट करते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू आर ग्रीटिंग अ सिक्योरिटी गार्ड to how you come across at a reception desk, to how you're sitting while waiting for an interview, people are watching you, you know and you don't even realize that, but वो सारा कुछ भी मैटर करता है जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट? सो फॉर अस potential also matters a lot. While we want high performing individuals, we also want high potential individuals, and potential comes across through, as I said, your ability to be curious and to be able to learn and unlearn things, to be able to be courageous enough to venture out of your comfort zone and to be able to fail and learn from those failings, and to be able to be consistent in whatever you're doing. Your integrity ultimately is what matters to us. सिमीन, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अब हम समझ पा रहे हैं एज ए प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटी, कि एकेडमिक्स एक शिफ्ट से गुजर रहा है। एक वक्त था जहां एकेडमिक्स का पर्पस केवल किताब पढ़ना, याद करना, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना होता था। आज की एकेडमिक्स दो तरीके से चल रही है। कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ संस्थान एक और जहां उसी पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और फोकस देते हैं ज़्यादा एकेडमिक नॉलेज पर। वहीं दूसरी ओर फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्चुनेटली जीएलए यूनिवर्सिटी उनमें से एक है, जो ये देख पा रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में आपने बात करी, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, सॉफ्ट स्किल्स, इनको समझ रहे हैं कि इनकी नीड ऑफ द आवर है, स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं और इंडस्ट्री को अपने साथ अलाइन करके चल रहे हैं। सो हमको ये महसूस होता है कि ये इंडस्ट्री इंटीग्रेशन एकेडमिक्स का वक्त है, जहाँ इंडस्ट्री को भी आगे आना होगा एक बेहतर कल के वर्कफोर्स को रेडी करने के लिए, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी अपने ओल्ड ट्रेडिशनल पैटर्न्स छोड़ के आगे बढ़ना होगा। व्हाट्स योर कॉल ऑन इट? You're right, industry academia interaction, this is not just a good thing to do or have. It's an essential element in today's world. बहुत टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि एकेडमिया एक अपने पाथ पे चल रही है, जो उन्हें ठीक लगता है, जिस तरह से उन्हें लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए या तैयार करना चाहिए, वो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। मगर इंडस्ट्री बिल्कुल अलग पेस पे चल रही है, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, एंड वी बीइंग इन द इंडस्ट्री वी सी दैट एवरी डे। बहुत कुछ चेंज हो रहा है, देयर इज सो मच दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, प्रोबेबली एकेडमिया इज नॉट एबल टू कैच अप देयर. So while academia teaches you to think very deeply, industry challenges you to act very swiftly. So that interaction is extremely important, And I feel there are institutions that are taking cognizance of this fact, and they are making sure that this interaction is more deep. It's not just a matter of just having guest lectures ke industry se koi aaya, guest lecture diya, chale gaye. I think the interaction has to be more deeper. There needs to be collaboration in co-creating curriculum for the students, in preparing them for life, what is ahead, in making sure that, if you have business issues and business problems, then how can you share them with industry, within the, with the academic collaboration, so that you are able to give data-driven business issues to the students. You're creating a sandbox experience for them to be able to not just fail there, but to fail safely, so that they don't feel, what have they done? It doesn't matter, because that's an experience that they will gain. So I think that connection is extremely important. And industry, yes, they also have to come forward
And yes, forward looking institutions like yours, they are thinking about how to have those connections, how to make sure that their students are one step ahead of rest so that they are better placed in life. So kudos to you for that. थैंक Definitely. यू। मेरा ऐसा मानना है सिमीन कि एक स्टूडेंट होने के नाते जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम अपनी एकेडमिक जर्नी में होते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं होती। कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है। और हम बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज में एक ठीक-ठाक सी अपॉर्च्युनिटी जो हमारे हाथ आती है, हम उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। और बाद में उस जॉब के साथ हमें रियलाइज़ होता है कि अभी मंज़िल बहुत दूर है, मुझे बहुत संघर्ष करना होगा। तो मेरा अगला सवाल जो है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो अभी अर्ली फेज़ ऑफ करियर में हैं कि एकेडमिक्स इज़ रिवॉल्विंग। क्या आज की दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए जैसा आपने भी कहा कि लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेस्ट टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है? Our government is supporting that. We do have Center for Distance and Online Education. We are also putting our efforts to help those people who have a quest to grow कि हम उन तक एजुकेशन को लेके जा पाएं। तो एज ए सीजन्ड HR प्रोफेशनल हैविंग सच ए ग्रेट लीगेसी, सिमीन का क्या मानना है कि अर्ली करियर प्रोफेशनल्स जिन्होंने पिछले 2 साल 4 साल में विद एक बेसिक एजुकेशन, एक बेसिक डिग्री के साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया होता है, कैसे अपने आप को आगे ले जा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग ही आपको आगे बढ़ाएगी, राइट? And online education, I think, is a great way of, getting a better understanding of what is new in the world. ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक इज़ अ बून, आपके ही लिए नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो अर्ली young professionals हैं, but for even people like us, who feel that they have done a lot in life and probably there's not much left to learn, but I feel that is where online education really helps. आपने बिल्कुल सही कहा। कई दफ़ा क्या होता है, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए होता है कि अच्छा, पहली नौकरी है, जो मिल रही है ले लेते हैं। इनफैक्ट कई दफ़ा जब मैं यंगस्टर्स को इंटरव्यू करती हूँ, फ्रेशर्स को, एंड द फर्स्ट एंड आई एम मेंटरिंग अ फ्यू ऑफ देम एज वेल, सो आई आस्क्ड देम, आई सेड कि if somebody asks what kind of a role do you want, some of them says ma'am kuch bhi chalega, which is not the right answer, because you need to think where do you want to go in life. True. It doesn't matter, ठीक है, पहली नौकरी है, हो सकता है आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन मिले जो आपकी एस्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बात नहीं, that's just the first step. It's what is it that you do afterwards, what are the experiences that you're gaining in this job that's going to help you, how are you upskilling yourself, and online education definitely helps there. How are you upskilling yourself? अभी जैसे आजकल में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे of AI, generative AI, data analytics, big data, all of that. These are the buzzwords today, and they are no longer going to remain buzzwords. They are going to be the reality in everyone's life. If you're not prepared, then you fall back, right? और हो सकता है आपने 10 साल पहले अपनी डिग्री करी हो सकता है उस टाइम पे ये चीज़ें जब कोई कहता भी नहीं था, इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, ज़ाहिर है आपको कहाँ पढ़ाया गया होगा। तो अब कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे आप उसको वो स्किल्स गेन करेंगे? वो तभी होगा जब यू गो ऑन टू एन ऑनलाइन education opportunity, figure out a course that is going to align with that, and then take that and upskill yourself. So I think that is very important, that constant upskilling is important, and if as a professional you continuously do that, you continuously remain relevant for the industry, and therefore you stand apart from others. So yeah. तो सिमीन, जैसा आपने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है और आज की जनरेशन को, यंग जनरेशन को टेक बेसिस पर, AI रिलेटेड इश्यूज पर अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। आपके लेवल पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगले कुछ आने वाले सालों में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप क्या चेंजेस देख पा रही हैं और उसके लिए आज का यूथ अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, स्पेसिफिकली स्किल्स, टूल्स कौन से वो अपने अंदर इनवाइब करे जिससे आने वाले कल की अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश कर पाए।
जो स्किल्स अब ज़रूरत होगी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एज आई सेड डिजिटल माइंडसेट की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि हर चीज़ डेटा ड्रिवन है. And you need to be aware of how to use these digital tools to be able to leverage on the enormous amount of data that you're getting. HR की फील्ड में एक टाइम था जब लोग HR इसलिए लेते थे कि पीपल ड्रिवन है, लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, इसलिए चलो HR ले लेते हैं. अब HR खाली ये नहीं रहा है. ठीक है, एम्पैथी इज़ वेरी मच द कोर ऑफ एवरीथिंग. दैट्स आवर सुपर पावर, यू नो, एज एन HR प्रोफेशनल. But now data is at the forefront of everything. If I'm not able to, analyze the data, if I'm not able to read the data and derive business insights from it, if I'm not able to tell my CEO and my MD कि ये करने से ये impact होगा people decisions में लेने में, तो फिर मेरी क्या relevance रह जाएगी. तो इसलिए for anyone who is a youngster, I think सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपका mindset क्या है. How are you continuously learning on these things? Second, of course, is your people skills, your core values, your core skills that will never be replaced by a machine. Fine. Your empathy. How do you deal with people? Deal with kindness, for example. I see a lot of bosses who are very unkind to their juniors, who are very harsh and very rude. काम तब भी निकल जाएगा जब आप किसी से अच्छे से बात करें, और किसी को गाली दे के बात करें तब भी काम होता है. मगर as a person, who would prefer working with whom? I mean, anybody can guess that, right? So I think those are things that are important. Collaboration skills. No machine is going to replace that. How are you able to work with teams? How are you able to take those teams alongside? So I think these are the skills that are going to be important, your digital literacy, your collaboration, your empathy, your own value system. These are things I think the organization will continue to value. मेरे अगले सवाल से शायद आप महिला होने के नाते बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगी. एक मेल और एक फीमेल के लाइफ साइकिल में स्ट्रगल्स में बहुत डिफरेंस होता है. गर्ल्स को बहुत हद तक ज़्यादा वर्सेटाइल होना पड़ता है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है. तो स्पेसिफिकली दोज फीमेल स्टूडेंट्स जो अभी सीखने के दौर से गुजर रही हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल दूसरे होंगे. आप उनको क्या राय देना चाहेंगी कि कैसे उन चैलेंजेस को फेस करते हुए वो आगे बढ़ने की अपनी राह को संभाले रखें, थामे रखें? आपने बहुत सही बात बोली कि महिला होने के नाते चैलेंजेस डिफरेंट होती हैं. चैलेंजेस मेल्स को भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होंगे, मगर डिफरेंट है. एंड इट्स अ लॉट टू डू विद द बायोलॉजिकल बीइंग ऑफ अ वुमन. ज़ाहिर है, जब आप बच्ची हैं, आपने अभी एजुकेशन कंप्लीट करी है, आपकी एस्पिरेशंस है कि आप किसी अच्छी नौकरी को लें. जब आप नौकरी में जाती हैं, फ़ौरन ही माँ बाप शुरू हो जाते हैं कि भाई शादी कर लीजिए. शादी होते ही प्रेशर्स होते हैं कि नाउ यू शुड हैव अ फैमिली. एक तरफ वर्क प्रेशर्स हैं, एक तरफ फैमिली प्रेशर्स हैं. 90% ऑफ द टाइम आई हैव सीन गर्ल्स गिव अप. एंड उसकी बहुत बड़ा रीज़न जो है वो आपका अपना फैमिली एनवायरनमेंट है, आपका इकोसिस्टम है. एंड आई फील फॉर द यंगस्टर्स, स्पेशली गर्ल्स, माई ओनली एडवाइस वुड बी कि डोंट गिव अप. चैलेंजेस आते रहेंगे, बच्चों की वजह से, घर की वजह से, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी. एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं. मेरे बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं. ओके, कोई ना कोई अलग फॉर्म में होंगी, मगर वो रहेंगी. तो अगर आप हर दफ़ा ये सोचते रहेंगे चैलेंज है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी. थैंक यू सिमीन, बहुत खूबसूरत बात आपने कही, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं रूट लाइज समवेयर इन गुड एजुकेशन. कि आज की जो जनरेशन है, जो आज के पेरेंट्स हैं, आज के हस्बैंड्स हैं, आज के यूथ हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि पार्टनर के साथ लाइफ अगर आगे ले जानी है तो आपको राइट बैलेंस डेवलप करना होगा. तो सोच बदल रही है, मेरा देश बदल रहा है, और काफ़ी हद तक इसका क्रेडिट अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड को जाता है. दैट गिव्स यू मोर मैच्योरिटी. सिमीन, मेरा अगला सवाल आपके प्रोफेशनल जर्नी से रिलेटेड है. DS ग्रुप में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंचने से पहले आपने मीडिया, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी काम किया है. कुछ बड़े कॉरपोरेट लेसन्स जो सिमीन ने लर्न किए हों और वो चाहें
कि नेक्स्ट जनरेशन उन लेसन्स को उनके माध्यम से समझ के उन पर अमल कर पाए? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये तो पूरा करियर का एक निचोड़ हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं कोई एडवाइस देना चाहूँ लोगों को कि भई कैसे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएँ और कैसे क्या चीज़ आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, आई थिंक दैट वुड बी प्रोबेबली, यू नो, बिल्ड कैरेक्टर, नॉट जस्ट करियर्स. Your character and who you are as an individual is what is going to differentiate you from other people. Uh, Through the journey, I have had good fortune of being associated with great people, great mentors, not just in my professional life but also in my personal life. My husband has been a very, very big support, and he has actually guided me through a lot of, I would say, ups and downs in life. When I come back and I went out on, वही एक sounding board होते हैं जिसको I keep, जो भी frustrations होती है उसमें True. to go and talk to. Similarly, in my professional life, there have been several people who've guided me through my career. Okay, this is a issue, look at it from this angle. And I think over the years, that's what I have aspired to be to young professionals in my organization. I have people coming in, walking into my room through the day, coming with their own unique issues. And I have tried to be a good mentor to them. I want to give back to what I have received from them. So, a career advice would be figure out who that mentor is going to be. Find out someone who you can relate to, who you look up to, चाहे वो आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपका करियर कोच हो. आप तो कोचेस भी होने लगे हैं, who can Yes. guide you there. Figure out someone who will be able to handhold you through the problems that you have in life. Sometimes, we don't realize it, but वो सीढ़ियाँ अपने आप ही आप क्लाइम करते चले जाते हैं. And how it happens, I don't know. It's just probably destiny. It's also good luck. And it's also your own resolve. So सिर्फ good luck से कुछ नहीं होता. I think आपकी अपनी resolve भी होना चाहिए to make sure that happens. मेरा ये मानना है कि आज की जनरेशन को टेक सेवी होना चाहिए, बेसिक सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए. ये अपनी जगह है. टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं कहीं हमारे लिए चैलेंज भी बन जाती है. अगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह रख के सोचूं, तो सिमीन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं उन कन्फ्यूज़न से कैसे दूर उठूं. टेक्नोलॉजी मुझे जंक ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे रही है, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे रही है. मेरे लिए यही समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्हाट्सएप का सही यूज़ कैसे करूं. अपने करियर के लिए इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स को मैं सही से यूज़ कैसे करूं. तो सिमीन जैसा पर्सन जब सामने बैठा हो तो ये सवाल बनता है. आपको पहले, एज आई सेड, पहले हमको वो 4 करियर्स के ऑप्शन के अलावा पता ही नहीं होता था, बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नो गूगल टू गूगल अप थिंग्स, देयर वाज नो चैट जीपीटी टू एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चंस. नाउ यू हैव एवरीथिंग, राइट? नाउ यू कैन जस्ट फिगर आउट, this is where I want to be. How do I go about? What are the courses I should take? What are the certifications I need to do? Start doing that. Start acquiring. अब तो सी इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगाली और भी सब लैंग्वेजेस ही हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनेंट ही होना है इंग्लिश में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, डेफिनेटली अगर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और वहाँ कस्टमर फेसिंग उसमें हैं, तो हो सकता है आपकी इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो उस रोल के लिए, मगर हो सकता है किसी और रोल में ना हो, किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो इट डजेंट मैटर. थैंक यू सिमीन. जैसा आपने कहा, मैं उसको एग्री करता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि योर डिग्री इज़ ए लाइसेंस टू प्रैक्टिस. यस. आप किस लेवल तक पहुँचेंगे ये आपके एफर्ट्स पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है. और थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आज का युवा, जैसा आपने कहा, बेहतर नॉलेजेबल है, और कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन से. या तो सही तरीका है कि हम उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट कर पाएं. सिमिन, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विश टू गो फॉर जॉब आफ्टर देयर स्टडीज एंड दे ड्रीम टू बी इन बिग कंपनीज.
लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट अब वर्ल्ड वाइड ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चे स्टडीज के बाद प्रॉफिटेबिलिटी को, आरओआई को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखते हैं और बहुत सारे बच्चे अपना वेंचर शुरू करना चाहते हैं। आप इस बारे में बच्चों को कैसे गाइड कर पाएंगी कि क्या सही वक्त होता है एक वेंचर में स्टेप इन करने का, अपना स्टार्टअप शुरू करने का? क्या ये सही है कि एजुकेशन के एकदम बाद स्टार्टअप में जाया जाए, या कुछ समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके लर्निंग ली जाए और फिर स्टार्टअप में जाया जाए? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो अपना स्टार्टअप्स करने की काफ़ी एस्पिरेशंस रखने लगे हैं। मगर बहुत ऐसी एक चीज़ जो हमने सबने देखी है और नोटिस भी करते हैं, जो एकदम से स्टार्टअप शुरू होता है और एकदम बंद हो जाता है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि आपका एक्सपीरियंस तो है नहीं। आप अभी यंगस्टर हैं, आपने पढ़ाई की, आपने सोचा कि आप ये कर पाएँगे। 2 तरीके होते हैं इस काम को करने के, या तो आपकी जो आइडिया है स्टार्टअप का वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको फंडिंग मिले और उस फंडिंग की वजह से आप ऐसे एक्सपर्ट्स रख पाएँ जिन एरियाज़ में आप खुद एक्सपर्ट नहीं हैं। मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या प्रोडक्ट जनरेशन, आइडिया जनरेशन में बहुत अच्छे हैं, मगर बैक एंड फाइनेंस में नहीं अच्छे हैं, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हायर समबडी हु इज़ एन एक्सपर्ट देयर। और दूसरा तरीका ये होता है कि ठीक है, आपका एक आइडिया है कि मुझे ये करना है, मगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, लर्निंग्स करते हैं, वहाँ से सीखते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद बाहर निकल कर के अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं। अ, दोनों तरीके बुरे नहीं हैं। इट्स ऑलराइट। जस्ट दैट यू नीड टू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड हाउ डू यू इंटेंड गोइंग अबाउट इट. The reason why a lot of startups fail is I feel that they probably started up too early and they were not able to sustain that, and the sustenance did not come because they did not have the inherent experience to do it. There is this person I know, and I can't quote him, but he's a young guy. He's about 28, 29 year old. He started off his startup in when he was only, I think, 21 or so, right out of college, and he's a very successful person. But the beauty of that person is, and he managed, like, he's into financial services. So the interesting thing that he told me was कि मुझे मालूम है मैं बहुत चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे ये मालूम है मैं किस में बहुत अच्छा हूँ, जिसमें मेरे से अच्छा कोई नहीं है। सो जो मैंने फंडिंग करवाई है, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट उन चीज़ों पे करा है और उन लोगों पे करा है। उसकी टीम जो है, वो यंगेस्ट है और उसके सारे टीम मेंबर्स उससे कहीं ओल्डर हैं इन लाइफ, राइट, इन एक्सपीरियंस। बट ही इज़ डेलिबरेटली चोज़न देम टू कॉम्प्लीमेंट व्हाट ही डज़न्ट हैव, एंड प्रोबेबली दैट्स द रीज़न व्हाई हिज ऑर्गेनाइजेशन इज़ रियली थ्राइविंग नाउ। सो दैट रियलाइज़ेशन कि मुझे ये नहीं आता, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो। सिमीन, आपकी जर्नी की बात करें तो आपने सेल्स में करियर से शुरुआत करी और इस लेवल पे अब आप एचआर में अपनी शाइन दुनिया में बिखेर रही हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं जिंदगी में, जिन्होंने करियर की शुरुआत में कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी कहाँ ले जाएगी, और वक्त आता चला गया, वो आगे बढ़ते चले गए, टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करते चले गए। लेकिन आज का युवा वर्ग काफी कुछ कोशिश करता है डे वन से सही स्पेशलाइजेशन चुनने का, सही डोमेन चुनने का। आपने भी इस चीज को कहा कि पहले से ये ध्यान रखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस में आगे बढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, अभी 12th पास करके आया हूं, तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं ये कैसे पहचानूं कि मेरे लिए कौन सा स्पेशलाइजेशन, कौन सा डोमेन, कौन सा कोर्स बेहतर है? और अगर पहचान भी लूं, तो क्या आने वाले वक्त में वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन या डोमेन मुझे मेरे करियर के लिए फ्रूटफुल वे दे पाएगा? ये कैसे समझ पाऊं? ये समझ पाना कि लाइफ आपके लिए क्या आगे क्या रखा है आपके लिए, वो तो बहुत नामुमकिन सी ही बात है, राइट। जब मैंने सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइजेशन करा था, तो मैंने थोड़ी सोचा था कि मैं एचआर में होंगी अल्टीमेटली, ट्रू। राइट। मगर मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगी। मुझे लगता था एज अ सेल्स पर्सन आई वुड बी गुड एंड आई विल बी इफेक्टिव, एंड दिस इज़ द लाइन आई फील इज़ एक्साइटिंग, दैट्स व्हाई आई चोज दैट, राइट।
life will keep throwing challenges to you. You will have to overcome them by being adaptable. You need to understand that there will never be a comfort zone for you. If you continue being in the comfort zone, you're stagnant. और आप फिर वहीं रुक जाएंगे. अगर आपको बढ़ना है तो आपको उसके बाहर निकलना ही पड़ेगा. ये बहुत अच्छी बात है कि आज का युवा जो है वो सोच पाता है कि मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है या मेरी क्या स्ट्रेंथ है. कभी जी, कभी ये पता भी होता है और आप जाते हैं, लेकिन जब आप नौकरी में आते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है कि जो मैं सोच रहा था वो शायद सही नहीं है, शायद मुझे चेंज करने की ज़रूरत है. और आप कितनी जल्दी अडाप्ट कर लेंगे उस चेंज को, कितनी जल्दी अपने आप को चेंज करेंगे, कितनी जल्दी आप नई स्किल्स एक्वायर करेंगे, that is how the growth is going to continue happening. So, I mean, continuously embracing challenges out of your comfort zone is something that is going to help you continuously grow. So, I think that is what people should sort of strive for. इसको अब हम अपने कन्वर्सेशन को अंतिम चरण की ओर ले जाते हैं. मैं आपसे 2 बहुत बेहद ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा. पहला, यंगस्टर्स जब जॉब में आते हैं, क्योंकि वो वेल प्लान नहीं होता है कि जॉब कैसी मिलेगी, और स्पेशली रूरल एरियाज़ के बच्चे, टियर 2 सिटीज़ के बच्चे, उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रॉडर चॉइसेस भी नहीं होती हैं. आज वो जॉब पा पाते हैं बिकॉज़ उनको ये पता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डिमांड क्या है. अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आज बच्चे तक पहुँच बनाए हुए हैं. ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे के घर तक पहुँच गई है. तो प्रिपेयर तो हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी, परफॉर्मेंस इश्यूज़ रहते हैं. एक यंगस्टर्स को अगर परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी या परफॉर्मेंस इश्यूज़ रहते हैं ड्यूरिंग देयर इनिशियल ईयर्स ऑफ करियर, तो हाउ दे शुड हैंडल दोज़ इश्यूज़? परफॉर्मेंस एंजाइटी और एंग्स्ट तो ये सभी लेवल्स पे रहता है. आज आप टॉप पे भी हों तब भी आपको लगता है कि भाई मेरा रिकग्निशन होगा इस चीज़ पे भी नहीं, या मैं ठीक कर पाऊंगी या नहीं, ये तो हमेशा ही रहेगा, राइट. मगर आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि गिव योर बेस्ट. जब आपकी अपने इंटेंट अच्छी होती है, आपका अपना रिजॉल्व अच्छा होता है कि यू आर गोइंग टू पुट इन योर 100%, जो भी आपका बेस्ट है आप वो ही देंगे, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा ही. हो सकता है कि you're in sales, for example. Since I started in sales, most of my examples also comes from there only. You got targets, right? And you may be not able to fulfill them, but have you tried enough? Have you tried thinking differently? Have you made that effort? कभी कभी वो एफर्ट भी दिखता ही है. अभी हो सकता है टारगेट बहुत स्टीप हो, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका रिजॉल्व क्या था, आप गए, आपका इंटेंशन क्या था, क्या आपने सही से अपना काम किया या नहीं किया, वो इम्पोर्टेंट है. कभी आप फेल करेंगे, कभी आप एक्सेल करेंगे, Yes. दैट डजंट मैटर. बट that's where, as I said, careers are never a straight line. There will always be zigzag, there will be ups and downs, lows and highs. You just need to know how to navigate them. It's a journey. Ultimately it's a journey with rhythm. You need to know how to go ahead. आप सबसे पहले तो आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपके मन से बाहर निकल जानी चाहिए कि आप किसी टियर 2 से आए हैं तो आप किसी से कम हैं. ये क्यों हैं आप कम, किस लिए Great. हैं आप कम? आप नहीं हैं कम, आप आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आप उसको दिखाइए ना. ठीक है, हो सकता है आपकी पहली जॉब लग रही है, वो थोड़ी दिक्कत से लगे, थोड़ी डिफ़िकल्टी से लगे, कोई बात नहीं. जब आप एक दफ़ा नौकरी में आ गए, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस, आप कैसे उसको निभा रहे हैं, कैसे अपने रिज़ॉल्व दिखा रहे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है. आजकल बहुत सारे बच्चों का मैं ये देखती हूँ कि 9 बजे नौकरी शुरू होनी है, 10 बजे आ रहे हैं. टारगेट आपका कुछ है, आप नहीं कर रहे हैं, तो इट डज़न्ट मैटर टू यू, कोई बात नहीं, दूसरी नौकरी मिल जाएगी. अगर वो एटीट्यूड रहेगा तो आप कहीं भी लाइफ में नहीं जाएँगे. मगर अगर ये एटीट्यूड है कि मैं, इंटेंशन मेरी सही है, रिज़ॉल्व मेरा सही है, आई विल मेक श्योर कि मैं 100% दे रहा हूँ नौकरी को, तो इट डज़न्ट मैटर अल्टीमेटली. एज़ आई सेड, फर्स्ट जॉब तो सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है. आप कहाँ से आए हैं, फिर उसके बाद कोई मैटर नहीं करता. क्या डिग्री है आपकी, कैसे, कहाँ से आप पढ़े हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कोई नहीं पूछता उसके बाद. तो वो पहले चरण तो तक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी. एक सक्सेस मंत्रा जो सिमीन देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? एक सक्सेस मंत्रा जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है, डोंट बिल्ड करियर्स, बिल्ड कैरेक्टर. It's your values that will continue to keep the doors open for you.
So I'm in full sync with you, Simin, and it was great to have you at GLA University, Greater Noida today. Thank you so very much. Thank you. इंडस्ट्री रिलेवेंट बने रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. What is needed to stay abreast, keep learning and remain curious. आज जो हमने जाना वो किसी भी किताब का हिस्सा नहीं हो सकता. ऐसी और भी बातें जानने के लिए, ऐसे ही और लीडर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब लीडर्स लाउंज, a place where leaders inspires future leader to come.